ऊपर कोरम का लिखा होना, वो बार बार अलग अलग जजेस का जजमेंट देना, वो माइनॉरिटी ओपिनियन की इम्पोर्टेंस, वो I am back with another video where I am going to be telling you about, all of you about how to read a judgment, how to see a judgment, what a judgment is, और एक जजमेंट को किस तरह से पढ़े सभी लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स या जो भी एक जजमेंट को समझना चाहते हैं. Let's get started. Often when we join law, we are perplexed by questions like what this judgment is, how to read this long a judgment. Very often the first case we are encountered with in the law school is the Keshavananda Bharti case, and all of us know the length of the judgment, so we are suddenly petrified, we are terrified as to how to go about it, how to read it. We don't know how to understand the legal opinion, even to understand a very short case or a very simple case such as the one which comes in contracts, that is the Mohri Bibi versus Dharmodas Ghosh. Just to give an example, we face many problems, and I myself faced that problem. At one instance it happened that I went to the contracts class after learning the citation of the case as an AIR 1973 SC 1666. I learned that actually because I didn't know what to do. Because I won't say that there was a problem in the education that was being given or something, but then definitely something lagged there, and this video is going to be your introduction to judgments. The first question that comes to our minds: what is a judgment? So if you see the law, the very first thing that comes to your mind is the Civil Procedure Code, the CPC. It says in section 2 subsection 9, it says judgment is nothing but a statement. Now what kind of a statement? Who gives this statement? Statement, just like a statement which we study in the Evidence Act. So it is a statement which is given by the judges. Now that statement is given on the grounds of a decree or order. That is, the judgment explains a decision. Okay, why the issue arose, what was the issue that arose, what was the trial court's decision, what is the current judge's observation, what is the quorum, and what actually is the law that is being laid down by the judgment right now. That is all that is there in the document which is called a judgment. Now if you get confused in a decree or order or a judgment, it definitely is one of the most important topics that comes in your exams, but most of us still remain confused about the concept. हम समझ नहीं पाते हैं कि अभी जो मैंने देखा ये जजमेंट थी, ये डिक्री थी या ऑर्डर था, सॉरी. सो जजमेंट वो है जहाँ आपको रीजंस दिखते हैं, जहाँ आपको डिटेल दिखते हैं, जहाँ आपको ऑब्जर्वेशंस दिखते हैं और जो जज आपको बना के देते हैं. डिक्री you'll find in practical situations is often drawn by the court master, जहाँ पे वो डिसीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं एक जजमेंट से, वो है डिक्री. While a judgment is defined in the CPC, a decree is also defined in the CPC only, in section 2 subsection 2, in the definition part as only. So you can have a look if you want to see what the exact definition is, but it is precisely what I have told you. Now we need to see what are the various parts of a judgment. To understand any document properly, especially a legal document, it is always advisable to divide it into parts, and you will be able to divide it into parts only when you know what the parts are. So let me tell you very briefly what all our judgment contains. So a judgment, if you see it from any website, you may find a head note there. Okay, a head note is like a short, very short summary of the judgment. What is it describes in very short pointers as to what the judgment contains. Now the second part is the facts of the case. So very often judges start a case, writing a judgment with describing the facts that were relevant to the case. The next part that comes is the framing of issues. The judges frame the issues before writing the statement. That is altogether a different stage in a criminal trial and a different stage in a civil proceeding. So जो भी इश्यूज़ फ्रेम होते हैं वो भी आपको जजमेंट में लिखे हुए दिखेंगे. तो तीसरा पार्ट हो गया आपका इश्यूज़. फिर जो आपको एक फोर्थ पार्ट वहाँ मिल सकता है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लोअर कोर्ट्स वर्डिक्ट. अगर लोअर कोर्ट्स ने वर्डिक्ट
केस पे दिया है, अगर वो ऑफ कोर्स हायर कोर्ट में आया और ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आया है तो लोअर कोर्ट्स ने कुछ ना कुछ कहा होगा। तो अक्सर आपको दिखेगा कि जजेस ये समझाते हैं कि लोअर कोर्ट ने कहा क्या था और किस ग्राउंड्स पे वो डिसीजन था और उस डिसीजन के अगेंस्ट ये अपील क्यों हुई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वेरी रेलेवेंट पार्ट जो कि मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत हेल्प करता है वो केस को समझने में, वो है द कंटेंशंस प्रेजेंटेड बाय एडवोकेट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब होता क्या है कि दोनों ही साइड्स, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट या जो भी नाम हो उस समय, वो दोनों ही अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं और जजमेंट में जब एक जज उन आर्ग्यूमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि क्यों किसी एक पार्टी ने वो एक साइड ली और काउंसिल फॉर द पिटिशनर ने क्या कहा, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट ने क्या कहा या काउंसिल फॉर द एपेलेंट ने क्या कहा, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट ने क्या कहा। ठीक है, उससे आपको ये समझने के लिए मिलता है कि केस के दोनों पहलू हैं क्या। ठीक है, अब अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आपको फॉर एग्जांपल यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस व्हिच कंसर्न्स हाइपोथेटिकल्स और यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ मूड कोर्ट, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन अ मेमोरियल राइटिंग या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करती है क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो एनालिटिकल बन पाती है। ओके, एंड nobody likes a lot of description. Okay, so all of us are lawyers, we know what the description was, but at various places people want to see how you analyze the facts, how you apply them. So ये वाला तो जजमेंट का पार्ट है जहाँ पर दोनों साइड्स के कंटेंशंस आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको वैसी क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। यू आर एबल टू अप्रिशिएट द एविडेंसेस अवेलेबल, द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम बोथ द साइड्स, और दोनों ही साइड्स के जो लॉज भी अवेलेबल हैं, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, डाइसेंटिंग जजमेंट्स हैं, वो भी आपको पता चलती है क्योंकि दोनों तरफ के एडवोकेट्स वो साइड करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई केस भी कभी प्रेजेंट करना है तो आई पर्सनली प्रेफर कि आप उन प्रेसिडेंट से गो थ्रू करें जहाँ पर पुराने वाले डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स को एनालाइज किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द जजमेंट, दैट इज द डिसीजन और द डिस्पोजिशन। ओके, जिसको हम कंक्लूजन एक आम भाषा में कह सकते हैं, जहाँ पे डिसीजन लिखा होता है और इसी डिसीजन से बनती है डिक्री जो कि ड्रॉ करके पार्टी को दी जाती है, जहाँ पर उनके राइट्स कंक्लूसिवली लिखे होते हैं कि इस केस का डिसीजन ये है और अब आपके राइट ये हैं। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स इन द इनिशियल ईयर्स आई हैव ऑफन हर्ड एडवाइजेस सच एज अवॉइड रीडिंग द जजमेंट इन द फुल, ब्लॉग पोस्ट पढ़ लो या किसी वेबसाइट से ब्रीफ पढ़ लो, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर students in the initial years to understand judgments, but I won't be advising that. I would rather say read one judgment in a week, but do read some decision in full. It will help you understand what all a judgment contains. और आपको जजमेंट को देखते ही ऐसे परप्लेक्स हो जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यार ये मैं कहाँ आ गया। ये आपको नहीं करना है, आपको पेन लेना है, कॉपी लेनी है, एंड यू हैव टू स्टार्ट बाय नोटिंग डाउन अ फ्यू थिंग्स. व्हाट आर दोज फ्यू थिंग्स? दैट इज दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. फर्स्ट, नोट डाउन द नेम ऑफ द केस, वेरी सिंपल. Then note down what is the quorum of judges, what are the names of judges. Then note down which court is giving the decision. Then note down whether this is in the original jurisdiction or whether this is an appeal coming from somewhere. I strongly recommend making notes for the facts of the case. Okay, I understand that it is the law that is important, but for initial years, you definitely need to understand what the facts are saying to at least know how the law is applied on the facts. So while making notes of the facts, always try to make flow charts. जैसे अगर आपको पार्टीज दिखती है उसमें, तो पार्टीज को ABCD करके आप बहुत शॉर्ट, जितना शॉर्ट आप नोट्स बना सकते हो उतना शॉर्ट में आप फ्लो चार्ट बना लो, और ऐसे बनाओ कि जब आप दोबारा उस फ्लो चार्ट को देखो आपको उस जजमेंट के सारे फैक्ट्स याद आ जाएं. उससे रिलेटेड कोई बहुत ही अलग सी बात याद कर लो जिसको सुनते ही आपको उस जजमेंट के बारे में याद आ जाए. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द केस ऑफ श्रेया सिंघल, तो श्रेया सिंघल जैसे ही मैं लॉ स्टूडेंट सुनती हूँ तो मुझे श्रेया सिंघल वाला केस पूरा याद आ जाता है और मुझे उसके सारे फैक्ट्स याद आते हैं कि किसने फाइल किया था, क्यों फाइल किया था, सेक्शन 66A क्या है, IT एक्ट क्या है, ये सब मुझे याद आने लग जाता है. तो इसी तरह से आप भी अपने माइंड में वो एक
ट्रिगर की तरह से कोई फैक्ट को रख सकते हो जो आपको सब कुछ याद दिला दे। तो आपने अब ये सब नोट डाउन कर लिया। अब आप फिर जब जजमेंट को आप पढ़ते जा रहे हो तो आप कंटेंशंस नोट डाउन करो पार्टीज़ के। ओके, जब तक आपकी कंटेंशंस नोट डाउन होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पूरा सब कुछ समझ चुके होगे और आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आने लग जाएगा कि क्या डिसीजन आने वाला है आगे, क्या लिखा होने वाला है आगे। यू विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग दैट। बट इफ़ यू वॉन्ट मेक नोट्स, इफ़ यू think that you can trust your memory, either I am wrong or you definitely have some exceptional quality, and okay, I appreciate that if that's fine by you, but my personal advice is to make notes of the facts and to start by noting down the things that I just told you here. नाउ ये इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो मैं आपको भी आगे बताने वाली हूँ कि आपको एक केस नोट, केस एनालिसिस या फिर एनालिटिकल केस ब्रीफ कैसे बनाना है, उसमें आपकी ये चीज़ें कैसे हेल्प करने वाली हैं आगे जाके, ठीक है। और साथ साथ आपको वो भी लिखते जाना है कि बीच बीच में आपको जो प्रेसिडेंट्स दिख रहे हैं ना कि इस लॉ पे क्या प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है। और सबसे पहले आपको उसमें से ये भी आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ लीगल प्रोविज़न कौन सा लगा है, लॉ क्या लगा है, क्या मैंने वो लीगल प्रोविज़न कभी पढ़ा भी है। अगर मैंने वो नहीं पढ़ा तो एक बार मैं बेयर एक्ट खोल के, और इफ़ आई डोंट हैव द बेयर एक्ट, इफ़ आई डोंट पोजेस द बेयर एक्ट राइट नाउ, तो मैं किसी ऑथेंटिक बेयर एक्ट सोर्स से उसको खोल के, सेक्शन को खोल के मैं एक बार पढ़ लूँ और जान लूँ कि आखिर प्रोविज़न है क्या। ये सब नोट डाउन करो, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम मच मच सिंपलर फॉर यू। बट इन अ सिंगल जजमेंट इटसेल्फ, उसमें भी अपने आप में कुछ अलग अलग तरह की जजमेंट्स होती हैं, जैसे हम मेजॉरिटी ओपिनियन, माइनॉरिटी ओपिनियन, कॉन्कर, डाइसेंट, इन सब नामों से जानते हैं। जब भी आपको कोई कहता है रीड द कॉन्करिंग ओपिनियन, रीड द डाइसेंटिंग ओपिनियन, एज अ फर्स्ट ईयर यू माइट गेट वेरी कंफ्यूज्ड, व्हाट इज कॉन्कर, व्हाट इज डाइसेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्करिंग एंड डाइसेंटिंग। सो बेसिक थिंग इज it is not possible for all judges to see eye to eye with their brother or sister judges. Okay, therefore they express either concur or dissent. That means what? Now let's deal with it step by step. कॉन्कर ओपिनियन प्रेजेंट करना, कॉन्करिंग जजमेंट प्रेजेंट करने का मतलब है कि आप कंक्लूजन तो सेम रीच करना चाहते हो, बट यू वांट टू गिव डिफरेंट रीजंस, यू वांट टू ड्रॉ अ डिफरेंट एनालॉजी, और यू फील लाइक द ब्रदर जज मिस्ड समथिंग एंड यू वांट टू गिव योर इनपुट अपॉन दैट एस्पेक्ट एज वेल। देयरफॉर जजेस गिव अ कॉन्करिंग जजमेंट। उससे आपको उस जजमेंट के बारे में और ज़्यादा पता लग सकता है, डिसीजन के बारे में उस जज का व्यू और ज़्यादा पता लग सकता है। Now what is a dissent? Dissent means, या dissent या dissent आप जो भी बोलना चाहते हो, it means reaching a different conclusion altogether. That means अलग अलग ही व्यू प्रेजेंट करना, मेजॉरिटी ओपिनियन से अलग होना। जो ज़्यादातर जजेस बेंच पे बैठे हुए चाहते हैं उससे अलग बात प्रेजेंट करनी, एक नई एनालॉजी या एक नया रीजनिंग लाके, वो है डिसेंट। और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन हम सब समझते हैं, जिस बात पे ज़्यादा जजेस अग्री करे हैं वो मेजॉरिटी ओपिनियन, जिस बात पे कम जजेस अग्री करे हैं या एक जज अग्री करे हैं वो माइनॉरिटी ओपिनियन। अब माइनॉरिटी ओपिनियन पढ़ने के भी अपने फ़ायदे हैं और उसको इग्नोर करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमेशा साइट किया जाता है और किया भी जाना चाहिए फॉर जनरेशन्स टू कम, द classic dissent of Justice Khanna in ADM Jabalpur case which later became the law. तो अगर माइनॉरिटी ओपिनियंस भी आपके लॉ को आगे जाके शेप कर सकते हैं तो आई थिंक दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड इवन इफ दे डू नॉट बिकम द लॉ दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी मस्ट नो हाउ टू रिस्पेक्ट द माइनॉरिटी ओपिनियन और द माइनॉरिटी व्यू, स्पेशली इन लॉ वेयर टू व्यूज आर ऑलवेज पॉसिबल. One very important thing that I would like to tell all of you, even if it's online classes or you are undergoing offline classes, which I doubt at this moment, if your teacher is telling you a judgment in the class, if she's talking she or he or any pronoun, if they're talking about a judgment in the class, in the lecture, then you should at least, when you come home or when your classes are concluded, you should at least download the judgment and try to read through it
just flip through the pages even if you don't understand. So you know, you just have to fake it till you make it. जब तक जजमेंट समझ नहीं आने लगती, उनको पढ़ने की, उनको समझने की आदत डालने की कोशिश करो. गेट यूज टू दोज पेजेस, गेट यूज टू द वो ऊपर कोरम का लिखा होना, वो बार बार अलग अलग जजेस का जजमेंट देना, वो माइनॉरिटी ओपिनियन की इम्पोर्टेंस, वो प्लेंटिफ का नाम लिखा होना, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके डेट डाल के जजमेंट का ढूंढना, कभी इंडियन कानून से ढूंढना, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी पढ़ने की कोशिश करना. गेट यूज्ड टू दिस ब्यूटी. So this basically concludes all the tips that I had for you guys, जो कि बेसिक बताते हैं जजमेंट रीडिंग का, हाउ टू रीड अ जजमेंट. और आगे आने वाले सेगमेंट में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट हाउ टू राइट केस एनालिसिस. डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट ऑल्सो. इन केस you have any opinion about what I just told you, what you saw in the video, or anything else you want to give any recommendation or anything, just please write your thoughts below in the comment section. It means a lot to me. And keep watching the videos. I am loving the support that you all are giving. Thank you so much. I love you all. And we just conclude for now. Let's wait until we meet again in the next video. There is one more request जो कि मैं आप लोगों से करना चाहती थी. I wanted to know what kind of content you people enjoy and what kind of content you guys want me to make. अगर आप मुझे जजमेंट ब्रीफ्स बनाने के लिए बोलना चाहते हैं, ओके. अगर आप मुझे व्लॉग्स बनाने के लिए बोलना चाहते हैं, फ़ाइन. आई मेक श्योर कि मैं उसमें इंफॉर्मेशन का डोज बहुत सारा दूँ. अगर आप मुझे कोई और तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं, और इफ़ यू वांट हाउ टू वीडियोस, देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड द कमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स विल बी इन द लिस्ट ऑफ माई पर्सनल things to do, videos to make. One more request, make one comment, at least one comment reach 50 likes, and I will definitely be making a video on that. It's my personal promise to you. एक comment करो, आपको ये चाहिए, उस पर आप 50 लाइक करो, और जैसे आपके 50 लाइक हो जाते हैं, I'm going to make a video on that topic.